So today we will solve some more example based on the Fourier series of type 1. I'm in interval 0 to a. So first of all, once again I recall the formula of Fourier series of type 1, and then we will start with an example. So type 1, find Fourier series of f of x pi minus x divided by 2 the whole square in interval 0 comma 2 pi. Hence find number 1 1 upon 1 square, 1 upon 2 square, 1 upon 3 square dot dot dot. Second one 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square minus 1 upon 4 square. यहाँ पे plus 1 upon 4 square dot dot. And third part is 1 upon 1 square plus 1 upon 3 square plus 1 upon 5 square dot dot. Okay, so this is your complete question type 1 से related. This is your question number 3 because कल हम लोगों ने already 2 question solve किए. So now solution start. So first of all, write the formula of Fourier coefficient in 0 to a. So a0, an and bn. That is 2 upon a, 2 upon a, 2 upon a. Integration 0 to 2a, 0 to a, 0 to a, f of x, f of x, f of x. Here cos of 2n pi x upon a, and in bn sin 2n pi x divided by a dx. So this is the formula for 0 to a. Now write the formula for 0 to 2 pi. So have to substitute a equal to 2 pi. Then now a0 equal to 1 upon pi 0 to 2 pi f of x dx. An equal to 1 upon pi 0 to 2 pi f of x cos nx. Because इधर a की जगह आप 2a पुट करोगे 2 pi तो 2 pi कैंसिल हो. And bn equal to 1 upon pi 0 to 2 pi f of x sin nx. Now function of this question f of x equal to, that is pi minus x by 2 the complete whole square. Okay, so ये function के basis पे हम लोगों को Fourier series calculate करना है. So now find the first value Fourier coefficient, that is a0. So that is you can write this function like this, pi minus x the whole square divided by 4. The first formula is 1 upon pi 0 to 2 pi, and your function is pi minus x whole square divided by 4 dx. According to formula of this integration, ax plus b whole raised to n dx, the answer will be ax plus b whole power n plus 1 divided by n plus 1 and divided by coefficient of x also. So according to this formula, integration of this function is pi minus x whole raised to 3 divided by 3 and coefficient of x, that is minus 1. Now limit is 0 to 2 pi. Now substitute here minus 1 upon 12 because 3 into 4 that is 12 and minus भी बाहर ले लिया. Now substitute x equal to 2 pi. So pi minus 2 pi the whole cube minus pi minus 0 the whole cube. Now simplify this expression, we will get minus 1 upon 12, and pi minus 2 pi is the minus pi cube is minus pi cube, and here also minus pi cube. So finally minus 2 pi cube divided by minus 12 pi.
here also pi. Now pi cancel, so finally answer is pi square by 6. So this is the value of a0. Understood? Student, any Yes, doubt sir. in this question? Okay, so let's find the value of an. So an equal to, once again write the formula, 1 upon pi, 0 to 2 pi, and your function is pi minus x the whole square divided by 4 and cos nx. So in this integration you have to use u into v rule. So according, पहले तो 4 कॉमन ले लेंगे, so 1 upon 4 pi, and according to u into v rule, u term as it is, I mean pi minus x the whole square as it is, integration of cos, let's see, और इसका डेरिवेटिव that is 2 into pi minus x and coefficient of x that is minus 1, and integration of v plus again derivative of this term. So x का derivative is -1 and pi का 0, so that is -1, so finally we will get +2, because derivative of pi is 0, x is 1, so -1 and -2 multiply करेंगे तो finally we will 2. Now integration of cos, ऐसे चलते जाएगा. So now concentrate on the v. So v is nothing but cos nx. Cos nx का integration is sin nx divided by n, and again derivative of integration of this term, so minus cos nx divided by n square, and again integration of this, so minus sin nx divided by n cube. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेट किया cos का तो sin आ गया, sin का किया तो माइनस cos हुआ, माइनस और n स्क्वायर कैरी फॉरवर्ड, देन cos का इंटीग्रेशन sin nx डिवाइड बाय n. नाउ सब्स्टिट्यूट द लिमिट, देन वी विल गेट. सो ऑलरेडी मैंने कल बताया था कि साइन में अगर आप पाई पुट करो या 0 पुट करो, दोनों केस में ये 0 बनता है, तो ये फर्स्ट एंड लास्ट टर्म तो बाय डिफॉल्ट 0 है, तो आपको सोचना है सिर्फ मिडिल वाले टर्म पे. तो इसके अंदर ही आप पुट करके लिमिट जो भी आता है वो इसी से आएगा, बाकी दोनों पार्ट तो 0 हो जाएगा. तो मैं सिर्फ उस पर ही फोकस करता हूँ और उसमें ही पुट करते हैं लिमिट. तो इधर x की जगह पाई पुट करेंगे, इसके अंदर 2 पाई, तो पाई माइनस 2 पाई इज माइनस पाई, ऑलरेडी -2 है, so minus of -2 pi minus 2 pi, and minus cos 2n pi upon n square. This is the upper limit. बाकी रेस्ट पार्ट जो आग फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म तो ऐसे भी 0 होने वाले. Go for the lower limit, so that is minus of -2 pi minus 0, and once again minus cos 0 divided by n square. So this is your value of lower limit. Now simplify this expression. So 1 upon 4 pi, here minus pi minus 2 pi, that is minus pi, और ये माइनस और ये माइनस ऑलरेडी प्लस हो गए, बट इधर के अंदर से माइनस निकल रहा है, तो फाइनली -2 पाई आएगा, बट इसका ऑलरेडी एक माइनस यहाँ पर भी है, तो इसकी वजह से फाइनली प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई n स्क्वायर, बिकॉज cos 2n पाई का वैल्यू 1 होता है. इधर बहुत सारे माइनस है, तो बाहर का माइनस, अंदर 2 माइनस और इधर माइनस, टोटल 4 माइनस है, तो फाइनली देखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, -1 times, 2 times, 3 times, 4 times, so that is 2 pi upon n square. Finally 4 pi upon n square, already 1 upon 4 pi hai, so we will get the 1 upon n square. So this is the value of an. Now find bn. Now formula of bn is the 1 upon pi 0 to 2 pi integration, and function is pi minus x the whole square divided by 4. This is your function, or sin nx dx. Once again apply u into v rule in this integration. So finally we will get 1 upon 4 pi, apply u into v rule, तो u whole term as it is, यानी कि pi minus x the whole square as it is, integration of sin minus derivative of this, that is -2 into pi minus x
integration of v term and plus that is x का derivative is 1 minus 1, so that is 2 or integration of next term 0 to 2 pi. So here integration of sine is nothing but minus cos nx divided by n, and again integration of this term, so minus sin nx divided by n square, minus carry forward कर लिया. Sin का integration itself a minus cos, already minus sin है, तो plus cos nx divided by n. Once again in this term sin nx is present, so since sin 2n pi and sin 0 both, in both case sin term will be 0, so only put the limit in first term and in last term, because middle term तो 0 हो जाएगा, भी उसमें sin है, और sin n pi 0 होता है, sin 0 भी 0 होता है. इसमें 2 पाई पुट करेंगे तो पाई माइनस 2 पाई द होल स्क्वायर माइनस कॉस 2n पाई अपॉन n, एंड ये वाला टर्म इग्नोर करके सीधा लास्ट टर्म पे जाते हैं, दैट इज 2 cos of 2n pi upon n cube. This is the value of upper limit. Now lower limit. Substitute x equal to 0. In first term that is only pi square cos 0 upon n minus already है minus cos 0 है, and last term is the 2 upon n cube because cos 0 is 1. लिखते हैं next time. Now simplify this expression, then we will get the final answer. So 1 upon 4 pi, pi minus 2 pi is the minus pi, but square है तो वापस pi square हो जाएगा, और ये माइनस जो cos के साथ है उसके वजह से माइनस pi square upon n, because cos 2n pi is 1, plus 2 upon n cube. So this is the value of upper limit. Minus, find the value of lower limit, that is cos 0 is 1, so minus pi square by n and plus 2 upon n cube. You can see that minus pi square by n and minus pi square by n both are cancelled, because due to this minus become a plus, and 2 upon n cube and 2 upon n also cancel, then finally answer will be 0. So now write the Fourier series of f of x is, what is the formula, that is f of x equal to, first of all I write the formula. So fx equal to a naught by 2 plus summation of n equal to 1 to infinity an cos of 2n pi x divided by a, or in this question a is nothing but 2 pi, plus once again summation n equal to 1 to infinity and bn sine of 2n pi x divided by a, or a is nothing but 2 pi. So now substitute the value of a0, an or bn and fx का value. So fx is nothing but pi minus x by 2 the whole square. This is the value of fx. a0 कितना मिला था जरा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे. a0 is pi square by 6. ऑलरेडी यहाँ फॉर्मूले में डिवाइड बाई 2 है, so then we will get pi square by 12 plus summation of n equal to 1 to infinity an कितना मिला वो भी चेक कर लेते हैं. So and then you can see that an is nothing but 1 upon n square. So now substitute 1 upon n square and cos of nx and bn 0 मिला है. So this is your final answer. बट क्वेश्चन में कुछ और भी हेंस डिड्यूस करने को दिया है. सो डिड्यूस पार्ट को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए पहले इसको सीरीज में एक्सपांड करते हैं. तो पाई माइनस एक्स बाई 2 कंप्लीट होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 12 को मैं इधर ले लेता हूँ. दिस इज इक्वल टू, अब इसके अंदर आप n की जगह 1 2 3 पुट करो, तो 1 पुट करेंगे सो दैट इज कॉस x अपॉन 1 स्क्वायर, कॉस 2x अपॉन 2 स्क्वायर, कॉस 3x अपॉन 3 square and cos 4x upon 4 square, like that. Now put on basis of trial and error, that is put x equal to either lower limit, that is 0, or put x equal to lower limit plus upper limit divided by 2, I mean pi. तो ये दोनों पुट करने से आपको रिजल्ट आ जाएगा. तो पहले 0 पुट करके देखते हैं and then pi. तो first of all put x equal to 0, so that is pi square by 4
माइनस पाई स्क्वायर बाई 12 बिकॉज एक्स की जगह 0 पुट किया, cos 0 1, तो फाइनली 1 अपॉन 1 स्क्वायर, 1 अपॉन 2 स्क्वायर, 1 अपॉन 3 स्क्वायर and 1 upon 4 square. Now simplify this expression. So that is we can write 1 by 4 is nothing but 3 by 12 लिख सकते हैं. So 3 minus 1, that is 2 by 12. So finally we will get pi square by 6. 1 upon 1 square, 1 upon 2 square, 1 upon 3 square, 1 upon 4 square, dot 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 dot. So this is your first part. ये फर्स्ट पार्ट मिल गया. सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग x की जगह 2 पाई पुट करेंगे. पुट x इक्वल टू पाई. तो क्या आएगा देखते हैं. इसके अंदर ही पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है. तो पाई पुट करेंगे यहाँ पे, तो पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा. ये 0 बच गया. माइनस पाई स्क्वायर बाई 12, दिस इज इक्वल टू कॉस पाई अपॉन 1 स्क्वायर, कॉस 2 पाई अपॉन 2 स्क्वायर, लाइक दैट. So this is minus pi square by 12. Cos pi, इधर cos 3 pi भी लिख सकते हैं, डिवाइड by 3 square. Cos 4 pi divided by 4 square dot dot. Cos pi is a minus 1, तो 1 upon 1 square, 1 upon 2 square, minus 1 upon 3 square and plus 1 upon 4 square. Minus से throughout multiply करेंगे, so pi square by 12. This is equal to 1 upon 1 square, minus 1 upon 2 square, plus 1 upon 3 square, minus 1 upon 4 square. This is your second part. So जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि ये अपर लिमिट पुट लोअर लिमिट पुट करो तो एक कुछ ना कुछ मिल जाता है. जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट मिल गया. अपर एंड लोअर डिवाइड बाई 2 एवरेज पुट करेंगे तो सेकंड भी मिल जाता है. इसके अलावा भी कुछ अगर क्वेश्चन में दिया है तो इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिल जाता है. तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर मिला है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज योर सेकंड पार्ट. दोनों को आप ऐड करके देखो क्या मिलता है. ऐड 1 एंड 2. तो फर्स्ट पार्ट में आंसर था पाई स्क्वायर बाई 6, सेकेंड पार्ट में आंसर है पाई स्क्वायर बाई 12. वन सेकेंड चेक कर लेते हैं. यस, फर्स्ट पार्ट में पाई स्क्वायर. फिर आप दोनों को ध्यान से देखोगे तो जो माइनस वाले टर्म्स हैं, जैसे कि 1/2 स्क्वायर और इधर 1/2 स्क्वायर कैंसिल होगा, 4 स्क्वायर कैंसिल होगा, 4 स्क्वायर कैंसिल होगा. बाकी के ऑड वाले टर्म बच जाएंगे, वो भी 2 टाइम्स. तो 2/1 स्क्वायर प्लस 2/3 स्क्वायर प्लस 2/5 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके एलसीएम 12 पकड़ेंगे तो 3 पाई स्क्वायर बाई 12 इक्वल टू 2 कॉमन लेते हैं, सो 1/1 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर एंड 1/5 स्क्वायर. नाउ 2 को इधर डिवाइड करो तो दैट इज 24. फाइनली आंसर इज 3 पाई स्क्वायर अपॉन 24 इक्वल टू 1/1 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर एंड 1/5 स्क्वायर. सो दिस इज योर थर्ड पार्ट. You can see that ये 3 पार्ट हम लोग को क्वेश्चन में पूछा था. एक बार क्वेश्चन में आपको शो कर देता हूँ. यस, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, दैट इज पाई स्क्वायर बाई 12. सेकेंड पार्ट का आंसर, सॉरी, पाई स्क्वायर बाई 6. सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया पाई स्क्वायर बाई 12 और इन दोनों को ऐड करके जो आंसर है दैट इज 3 पाई स्क्वायर बाई 20. तो ये आंसर हम लोग को 1 by 1 मिल गया. So before starting the new problem, I will just explain the Parseval's identity and after that we will solve the next question. So what is the Parseval's identity? तो पार्सेवल्स आइडेंटिटी कैसे प्रूफ होता है, वो बहुत ही सिंपल है. पहले हम लोग क्या करते हैं, A0 का अभी पार्सेवल्स आइडेंटिटी हर एक टाइप के लिए. पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर, पहले मैं 0 टू A के लिए प्रूफ कर रहा हूँ. तो 0 टू A के सारे फॉर्मूला आप लिखो, साथ में लिखो आप भी. सो दैट इज 2/A 0 टू A f of x dx. फिर an का फॉर्मूला 2/A 0 to A f of x cos of
2n pi x divided by a dx, and bn equal to 2 upon a 0 to a f of x sine 2n pi x divided by a dx. Now final formula of the Fourier series. So fx equal to a naught by 2 plus summation of n equal to 1 to infinity an cos of 2n pi x by a plus bn sin 2n pi x by a. तो ये फॉर्मूला तो हम लोगों ने काफी टाइम्स रिपीट कर लिया। अभी ये फॉर्मूले में आप क्या करो, दोनों साइड में f of x से multiply by f of x. This is your first step. We will get f of x the whole square, a 0 by 2 f of x plus summation of n equal to 1 to infinity an f of x cos 2n pi x upon a plus summation n equal to 1 to infinity bn f of x sin of 2n pi x divided by a. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप जो आपने इसमें चेंजेस किए। सेकेंड स्टेप में आपको इंटीग्रेट करना। सेकेंड इज द इंटीग्रेट विथ लिमिट 0 to a। 0 to a में इंटीग्रेट करें तो ये आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा 0 to a f of x the whole square dx equal to a naught by 2 is a constant, integration once again 0 to a f of x dx plus summation of n equal to 1 to infinity an is a constant, integration 0 to a f of x cos of 2n pi x divided by a dx plus summation n equal to once again 1 to infinity, that is bn, integration 0 to a f of x into sine of 2n pi x divided by a dx. So this is your second changes जो आपने किया। थर्ड चेंज करना है मल्टीप्लाई बाय 2 by a on both side। सब में बोथ साइड ही है, ऑन बोथ साइड। सो क्या चेंजेस होगा, तो 2 by a 0 to a f of x whole square dx equal to a naught by 2 2 by a 0 to a f of x dx plus summation of n equal to 1 to infinity an 2 by a, हर एक टर्म में 2a by से मल्टीप्लाई करते जा रहे, 0 to a f of x cos of 2n pi x upon a dx plus summation n equal to 1 to infinity bn 2 by a 0 to a f of x sin of 2n pi x upon a dx। सो ऐसा करने से आप देख रहे हो ये सब फॉर्मूला बन गया। ये टर्म a0 का फॉर्मूला है, वैसे बाकी के भी फॉर्मूलेस बन गए, तो आप उसमें फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 2 by a 0 to a f of x the whole square dx equal to a naught by 2 and this is the formula of a naught। ये a naught का फॉर्मूला है। summation of n equal to 1 to infinity an into an summation n equal to 1 to infinity bn and this is the formula of bn। तो इस तरह से फॉर्मूला बनते चला है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगर, तो 2 by a
इंटीग्रेशन 0 to a f of x the whole square dx, this is equal to a नॉट का स्क्वायर बाई 2 प्लस, इसको कंबाइन समेशन में लिख सकते हैं, दैट इज ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर. So this is your final पार्सेवल्स आइडेंटिटी. कोई डाउट है इसमें? बहुत ही इजीली हम लोगों ने प्रूफ किया. तो पहले ओरिजिनल फॉर्मूला लिख के एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला लिख के उसमें मल्टीप्लाई बाई एक्स किया. फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई बाई एक्स, सेकेंड स्टेप में इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, एंड थर्ड इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाई 2 बाई ए. ये 3 स्टेप से आपको लास्ट में एक रिजल्ट मिल गया जिसको हम लोग पार्सेवल्स आइडेंटिटी बोलते हैं. तो अभी यही आइडेंटिटी सेकेंड टाइप के लिए भी प्रूफ करो. तो नेक्स्ट इज Parseval's identity for minus a to a. So first of all, write the formula of a0 for minus a to a. So that is 1 upon a minus a to a f of x dx plus an equal to 1 upon a minus a to a f of x cos of n pi x divided by a. तो 2n pi x नहीं होता है, and bn equal to 1 upon a minus a to a f of x sin of n pi x by a dx. Now final formula of the Fourier series, so that is fx equal to a naught by 2 plus summation of n equal to 1 to infinity an cos of n pi x by a plus summation n equal to 1 to infinity bn sin of n pi x by a. अब इस फॉर्मूला में जो लास्ट फॉर्मूला है इसमें चेंजेस करेंगे 3 स्टेप्स. इसी के अंदर चेंजेस करेंगे. पहला स्टेप चेंज क्या होने वाला है? मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ एक्स. तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर ए नॉट बाई 2 एफ ऑफ एक्स प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन इंटू एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ एन पाई एक्स बाई ए प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन इंटू एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एन पाई एक्स बाई ए. सेकेंड स्टेप में हम लोग को इंटीग्रेट करना है, इसी के साथ इंटीग्रेशन लगाना है. तो लिख देता हूं मैं इंटीग्रेट विथ लिमिट minus a to a. So that is minus a to a f of x complete whole square dx equal to a naught by 2 is a constant. So integration minus a to a f of x dx plus summation n equal to 1 to infinity a n is a constant, therefore minus a to a f of x cos of n pi x by a dx plus third term n equal to 1 to infinity bn into minus a to a f of x sin of n pi x upon a dx. थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था? मल्टीप्लाई बाई 2 बाई ए किया था. यहाँ पे हम लोग 1 बाई ए करेंगे. मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन ए ऑन बोथ द साइड. सो 1 अपॉन ए माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर dx प्लस इक्वल टू ए नॉट बाई 2 इंटू 1 अपॉन ए माइनस ए टू ए f of x dx plus summation n equal to 1 to infinity a naught a n 1 upon a minus a to a f of x cos of n pi x upon a dx plus थर्ड टर्म bn वाला, उसमें भी 1 upon a से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो प्लस summation of n equal to 1 to infinity
bn into 1 upon a minus a to a f of x sin of n pi x upon a dx। अब ये सब फॉर्मूला बन जाएगा, ये वाला भी टर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक ये an बन जाएगा और ये bn का फॉर्मूला है। तो ये लाके सब्स्टिट्यूट करेंगे a0 an bn, तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा, दैट इज 1 अपॉन a माइनस a to a f of x complete whole square dx, this is equal to a naught by 2 into a naught plus summation n equal to 1 to infinity an into an plus summation n equal to 1 to infinity bn into bn। फाइनली एक और लाइन सिंप्लीफाई करेंगे, सो लास्ट रिजल्ट इज 1 अपॉन a माइनस a to a f of x whole square dx, this is equal to a naught का स्क्वायर by 2 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an का स्क्वायर प्लस bn का स्क्वायर। तो ये है पार्शियल आइडेंटिटी फॉर माइनस a to a। तो जैसा पहले था वैसे अभी भी है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, और इधर लेफ्ट साइड में 1 अपॉन, इधर a है, यहाँ पे 1 अपॉन a है सिर्फ, और प्रीवियस वाले में 1 अपॉन 2 है, आप देख सकते हैं 2 अपॉन a, 2 अपॉन है सर। यस, और उधर 1 अपॉन, बाकी का फॉर्मूला सेम ही है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हम लोग टाइप 1 की डिस्कस कर रहे हैं, यानी ये वाला प्रॉपर्टी यूज करके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल सिखाता हूँ ऑन बेसिस ऑफ दैट। f of x equal to question number 4, find Fourier series of f of x equal to x and 2 pi minus x, x and 2 pi minus x, 0 less than x less than pi, pi x less than 2 pi। ओके, इसमें प्रूफ करना है, हेंस deduce that number 1 summation of 1 upon 2n plus 1 the whole square equal to question mark, and second part 1 upon 1 raised to 4, 1 upon 2 raised to 4, 1 upon 3 raised to 4। सॉरी, ये 3 1 3 और 5 है, 1 3 5 रेस्ट टू। तो कभी भी पावर में अगर रेस्ट टू 4 या रेस्ट टू 6 आ गया ना, तो फिर ये जो चीज प्रूफ करना है, इसके लिए हम लोग पार्सेल्स यूज करेंगे। ये पार्सल से ही प्रूफ होगा, ये नॉर्मली प्रूफ हो जाएगा पुट करके। चलो, बट उसके पहले तो हम लोग a0 n bn तो निकालते हैं। सो सॉल्यूशन स्टार्ट। आपके क्वेश्चन का लिमिट, लोअर लिमिट 0 है जो कि यहाँ लिखा हुआ है, एंड अपर लिमिट 2 पाई है। तो फाइनली ये 0 to 2 पाई का ही क्वेश्चन है, और 0 to 2 पाई के लिए हम लोगों ने अभी तक, ये फोर्थ सम है, तो मैं डायरेक्टली 0 to 2 पाई के लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, दैट इज 1 अपॉन पाई, क्योंकि हम लोगों ने 2-3 बार बनाया है ना इसको, तो ओरिजिनल लिख के फिर एक ही जगह 2 पाई पुट करके बनाने से बेटर है कि अब डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखो, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2-3 बार इसको लिख चुके हैं। बट ये फॉर्मूला आता है 0 to a में a की जगह 2 पाई पुट करने से, जैसे कि हमने प्रीवियस 3 प्रॉब्लम में देखा। बट मैं वो स्टेप नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी कई बार लिख दिया है। अब इसमें आप f of x की जगह पुट करेंगे, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि f of x के सामने दो फंक्शन है, पहला फंक्शन है x और दूसरा फंक्शन है 2 पाई माइनस x, बट दोनों का लिमिट अलग अलग है। इसके लिए 0 to पाई है और इसके लिए पाई टू 2 पाई।
तो हम लोग जो इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं उसको स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में, यानी कि आपका फंक्शन जीरो से स्टार्ट हुआ है, 2 पाई तक गया है और बीच में पाई है, तो इसके पहले x है और इसके बाद 2 पाई माइनस एक्स। तो आपको यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है और फिर यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट। तो अगर मैं a0 का फॉर्मूला लिखता हूँ तो 1/पाई 0 to पाई में x लिख के सॉल्व करेंगे एंड पाई से 2 पाई में 2 पाई माइनस एक्स लिख के सॉल्व। तो ये एक नई चीज है आपके लिए। तो आपका जो इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, 0 to पाई एंड पाई टू 2 पाई। तो ये आपको a0 an bn तीनों में करना है। तो ये लिटिल बिट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया बट कोई बात। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है, कर सकते हैं हम लोग। तो 1/पाई एंड इंटीग्रेशन ऑफ x इज नथिंग बट x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to पाई, इसका 2 पाई का 2 पाई x और x का x स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट वंस अगेन 0 to पाई टू पाई। तो दो अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चंस डिजाइन हो गए, तो उनको सॉल्व करते हैं। तो अभी इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे पाई लोअर 0 डिवाइड बाई 2। इसका अपर देखते हैं। अपर पुट करेंगे तो 2 पाई एंड 2 पाई दैट इज 4 पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर बाई 2, दिस इज अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट पाई पुट करेंगे तो दैट इज 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। एक बार x की जगह 2 पाई पुट किया, एक बार पाई पुट किया। ओवरऑल सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो 1/पाई पाई स्क्वायर बाई 2, ये ये बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर। 4 माइनस 2 पाई स्क्वायर फाइनली 2 पाई स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2 2 4 माइनस 1, या फिर वो इसको ऐसे ही लिखते हैं दैट इज 2 पाई स्क्वायर एंड प्लस पाई स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और फर्स्ट एंड लास्ट ऐड हो गए, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 पाई स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, तो फाइनली आंसर इज पाई। अंडरस्टूड? स्टूडेंट समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay, so Yes, sir. let's solve the next value, that is an. So an का फॉर्मूला इज 1/पाई 0 to 2 पाई f of x cos nx dx. Now I split this question in two parts. First integration is 0 to 2 pi and function is x cos nx dx, and second is pi to 2 pi and function is 2 pi minus x into cos nx dx. So आपको अभी दो अलग अलग इंटीग्रेशन सॉल्व करने हैं। पहले वाले में भी u इंटू वी लगेगा, दूसरे में भी u इंटू वी लगेगा। So इसमें u इंटू वी लगाते हैं, तो u यानी कि x इंटीग्रेशन ऑफ cos दैट इज sin nx डिवाइड बाय n minus derivative of x is 1 and again integration of sin that is minus cos nx by n square and 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये इधर ही स्टॉप हो जाएगा। लिमिट 0 to पाई। सेकेंड वाले पे आते हैं, वापस इसमें u इंटू भी लगेगा, u यानी कि 2 पाई माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ cos इज नथिंग बट sin nx डिवाइड बाय n माइनस का डेरिवेटिव इज -1 एंड माइनस cos nx डिवाइड बाय n स्क्वायर। अगेन डेरिवेटिव ऑफ -1 इज 0, तो फाइनली यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, बट लिमिट इज पाई टू 2 पाई। नाउ सब्स्टिट्यूट अपर लिमिट लोअर लिमिट फॉर बोथ टर्म। 1/पाई फर्स्ट टर्म पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। साइन में पाई पुट करो तो 0 बनता है और साइन में 0 पुट करो तो भी 0 बनता है, तो ये टर्म तो दोनों केस में 0 बन जाएगा, तो इस पे तो कॉन्सेंट्रेट करना ही नहीं है, तो सिर्फ इसके अंदर ही पुट करते हैं। इसके अंदर पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस cos n पाई डिवाइड बाय n स्क्वायर, दिस इज अपर लिमिट। 0 पुट करेंगे तो cos 0
डिवाइड बाई एन स्क्वायर। तो ये अपर लिमिट पहले, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पहले वाले का हो गया। सेकंड पे आते हैं। इधर माइनस 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 3 बार माइनस है तो माइनस ही बचेगा। तो माइनस कॉस 2n पाई अपॉन एन स्क्वायर, दिस इज अपर लिमिट का वैल्यू, माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू, तो माइनस कॉस n पाई डिवाइड बाई एन स्क्वायर। तो जो मैंने नीचे ऐसा अंडरलाइन किया है वो तो फोकस करना ही नहीं, बिकॉज वो जीरो हो जाएगा। अब कॉस n पाई का वैल्यू मैंने आपको लिख के दिया है, बट फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं इसलिए आपको याद नहीं होगा, बट मैं बताता हूँ। कॉस n पाई का वैल्यू -1/n अपॉन एन स्क्वायर। कॉस 0 तो 1 होता है तो 1 अपॉन, एंड वंस कॉस 2 पाई भी 1 होता है तो 1 अपॉन एन स्क्वायर। And here minus minus plus, but cos n pi is the -1/n divided by n square. So completely n square हम लोग कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज हर एक टर्म में n स्क्वायर है, तो 1 अपॉन पाई n स्क्वायर, यानी ये फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म दो टू टाइम्स है, तो 2 टाइम्स ऑफ -1/n, और ये भी मिडिल के दोनों टर्म भी 2 टाइम है, तो दैट इज 2। अब फाइनली 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो दैट इज -1/n एंड -1। तो an का वैल्यू 2 अपॉन पाई एन स्क्वायर -1/n -1। अब ये एक्सप्रेशन को जरा और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, अगर आप नहीं भी करते हो तो चल जाएगा, बट फॉर योर नॉलेज पर्पस मैं इस आंसर को जरा और भी मॉडिफाई कर सकता हूँ, तो करके दिखाता हूँ कि क्या होता है। ये फर्स्ट आंसर है, और करके इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। लिखने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ पे ऑड नंबर पुट करोगे तो -1 आएगा, और अगर इवन नंबर पुट करोगे तो +1 आएगा। और ऑड को हम लोग 2n+1 लिखते हैं, और इवन को 2n लिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था। तो ये चलो यहाँ पे ऑड इवन स्प्लिट करते हैं, बिकॉज n यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि n का वैल्यू ऑड है तो ये -1 बन जाएगा 2 अपॉन पाई एन स्क्वायर, और अगर n का वैल्यू मैं बोलूँ कि इवन है तो ये +1 बन जाएगा, एंड बाकी का एज इट इज रहेगा। तो आप यहाँ देख रहे हो कि इवन के केस में वो 0 हो गया, और ऑड के केस में -4 अपॉन पाई एन स्क्वायर हो गया, बट ये किसके लिए, ऑड के लिए, और इवन के केस में आंसर विल बी 0। तो ऑड को जैसा कि मैंने बताया कि 2n+1 लिखते हैं, तो फाइनली आंसर -4 अपॉन पाई, n इज नथिंग बट ऑड, और ऑड को हम लोग कैसे लिखते हैं 2n+1, तो फाइनली an इक्वल टू -4 अपॉन पाई 2n+1 द होल स्क्वायर। सो ये उसका एक सेकेंड वर्जन का आंसर है। तो होप सो कि आपको ये समझा रहेगा, थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, बट काफी स्मूथली मैंने सॉल्व किया है स्लो मोशन में, तो आपको समझ में आया रहेगा। ठीक है, तो कभी भी आंसर में अगर -1/n आए, यानी कि -1/n अगर आया, तो आप ऑड इवन का कंसेप्ट यूज करके सोच सकते हो। लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द bn, 1 अपॉन पाई 0 to 2 pi 0 to pi x sin nx dx plus pi to 2 pi, and that time function is 2 pi minus x into cos nx, sorry not cos, sin nx dx। तो वंस अगेन bn भी दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, जैसा कि आपका फंक्शन का दिया हुआ था। तो 1 अपॉन पाई इंटीग्रेट करते हैं, तो u यानी कि x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज नथिंग बट माइनस कॉस nx डिवाइड बाई n, minus derivative of x, that is 1, and again integration of minus cos nx, that is minus sin nx divided by n, therefore n square. So this is your first integration, limit is 0 to 5. Now consider our second one.
So that is u is nothing but 2 pi minus x as it is. Integration of sine is nothing but minus cos nx upon n, and second time 2 pi minus x का derivative that is minus 1, and again integration of minus cos that is minus sine nx, and again divided by n square, and limit is pi to 2 pi. ओके, नाउ दोनों के अंदर हम लोग लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो फर्स्ट पार्ट में लिमिट पुट कर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि साइन पाई 0 एंड साइन 0 भी 0 होता है. तो आप सिर्फ ये जो मैंने अंडरलाइन किया है इस टर्म को आप इग्नोर करो, बिकॉज ये साइन का टर्म है और साइन में पाई पुट करो तो भी 0 होता है और साइन 0 0 ही होता है. सो फाइनली सिर्फ फर्स्ट टर्म पे पुट करते हैं. सो दैट इज एक्स की जगह पाई पुट किया और माइनस भी है उस टर्म में. सो माइनस पाई cos n pi upon n. दिस इज अपर लिमिट. सेकेंड पार्ट जो अंडरलाइन किया उसको इग्नोर करना है. लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे पुट कर रहे हैं. तो ये अपर एंड लोअर का हो गया कंसेप्ट. प्लस सेकेंड में आते हैं, सेकेंड टर्म यानी कि यहाँ से इसमें अगर आप x की जगह 2 पाई पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, और दूसरा तो 0 है ही ऑलरेडी. माइनस अब उसी के अंदर पाई पुट करेंगे तो 2 पाई माइनस पाई दैट इज पाई, बट एक माइनस ऑलरेडी कॉस के साथ है, डिवाइड बाई n. तो दिस इज योर अपर एंड लोअर लिमिट. ये फर्स्ट टर्म का अपर लोअर था, ये सेकेंड टर्म का अपर एंड लोअर था. ओके, सो नाउ सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन. cos n पाई जैसे कि मैंने आपको बताया दैट इज माइनस 1 रेज़ टू n. सो फाइनली 1 अपॉन पाई minus pi minus 1 raised to n divided by n, and here plus pi minus 1 raised to n divided by n. ये दोनों माइनस आपस में मिलके प्लस हो. तो फाइनली ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो गया एंड देन आंसर विल बी 0. सो फाइनली bn is. Now substitute the value of a0, an, bn in the final answer. So first of all, formula of the Fourier series f of x equal to a naught by 2 plus summation equal to 1 to infinity an cos nx. मैं 0 to 2 पाई के लिए फॉर्मूला डायरेक्टली लिख रहा हूँ. n equal to 1 to infinity bn sin nx. f of x का वैल्यू दो टर्म है इसलिए फिलहाल उसको f of x ही रहने देता हूँ. a0 का वैल्यू क्या मिला था जरा चेक कर लेते हैं. तो a0 का वैल्यू है, an का दो वैल्यू है तो दोनों में से दोनों पुट करके दोनों आंसर लिखूंगा. a0 का वैल्यू पाई है, तो a0 का वैल्यू पाई है तो पाई बाई 2 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी. और an का जो पहला आंसर आया था, दो आंसर लिखा है मैंने इधर और कर, तो इसको पुट करके एक फॉर्मूला आंसर लिख देते हैं और दूसरा वाला पुट करके लिखें. तो 2 अपॉन पाई n स्क्वायर, 2 अपॉन पाई n स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू n minus 1 into cos nx, and bn to 0. So this is your first answer. I mean this is the one of the answer. And if you substitute the odd even wala concept, then we will get the second answer. f of x pi by 2 plus summation of तभी आंसर मिला था 4 अपॉन 2n plus 1 होल स्क्वायर इंटू पाई. cos अब इधर n नहीं लिखेंगे बिकॉज ये ऑड के लिए लिख रहे हैं, बिकॉज ये जो भी नहीं लिखा है ऑड के लिए लिखा है, तो इधर n को भी ऑड से रिप्लेस कर दोगे, क्योंकि ये जो मैंने आंसर डिराइव किया था उसमें मैंने बताया था कि n ऑड है, ये ऑड के लिए डिराइव किया था. फॉर ऑड ये स्टार्ट में ही लिखा है ऑड, क्योंकि इवन के लिए तो 0 मिला था, तो ऑड के लिए आंसर मिला है माइनस 4 अपॉन पाई 2n plus 1 द होल स्क्वायर. तो इसलिए जैसे यहाँ पे मैंने ऑड को 2n plus 1 लिखा, वैसे वहां पर भी n की जगह पे हम लोग 2n plus 1 लिखा. तो ये सेकेंड आंसर है. दोनों में से कोई भी आंसर एग्जाम में आप लिख सकते हैं. हाँ, बट इसमें लिमिट का जरा सोचना पड़ेगा. लिमिट जो n इक्वल टू 1 है ना, 1 से शुरू नहीं हो, n इक्वल टू 0 से शुरू हो, बिकॉज यहाँ पे जब n की जगह आप 0 डालोगे तो पहला टर्म 1 आएगा,
और हमारा पहला टर्म 1 आना चाहिए। यहाँ भी आप अगर n की जगह 1 डालोगे तो n की जगह 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ भी 1 आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिमिट में थोड़ा चेंजेस करेंगे, 0 टू इन्फिनिटी करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना। सेकेंड आंसर काफी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आप उसको समझ के ले सकते हैं। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने के लिए। फर्स्ट पार्ट में पूछा था n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2n प्लस 1 द होल स्क्वायर का वैल्यू, ये पूछा। तो ये जो सेकंड पार्ट पूछा है वो इसमें कहीं ना कहीं ये टर्म इन्वॉल्व है, बट ये cos x नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो ये तभी एलिमिनेट होगा जब आप x की जगह 0 पुट करोगे, cos 0 1 हो जाएगा, और टर्म चाहिए भी नहीं। तो फिर फाइनली हम लोग यहाँ पे ये डिसाइड कर रहे हैं कि x की जगह हमें क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो इसी के अंदर अगर x की जगह 0 पुट करते हैं तो क्या बनेगा, f ऑफ 0 बनेगा इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस प्लस नहीं, इधर माइनस 4 अपॉन 2n प्लस 1 इंटू, सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ 4 अपॉन सिर्फ पाई लिखना है। समेशन के अंदर आपको मिलेगा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, cos 0 1 बन गया है, ये वैल्यू cos ऑफ 0 1 हो गया बिकॉज x की जगह हमने 0 पुट किया, तो बचेगा सिर्फ 1 अपॉन 2n प्लस 1 था। यही टर्म आपको कैलकुलेट करना है, तो इसको हम लोग लेफ्ट में ट्रांसफर कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। तो ये माइनस के साथ है तो वो साइड में जाके प्लस हो जाएगा, और f ऑफ 0 को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। पहली बात तो ये 4 अपॉन पाई रहेगा एंड 1 अपॉन 2n प्लस 1 द होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस f ऑफ 0। फिर 4 को भी हम लोग भेज देंगे इधर, बट बिफोर दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0, चलो उसको भी डिस्कस करते हैं, पहले इसको प्योरली सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 अपॉन 2n प्लस 1 द होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 बिकॉज इधर 4 अपॉन पाई है, एंड पाई बाई 2 माइनस f ऑफ 0। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0, सो क्वेश्चन पे आके देखते हैं। तो क्वेश्चन में देखते हैं f ऑफ 0 क्या है। यहाँ पे है फंक्शन, यस दिस इज योर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में, इस पूरे कंप्लीट क्वेश्चन में आपको दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर 4, तो 0 यहाँ पे है, तो 0 इसमें पुट करोगे तो एक 0 हो जाएगा, देन f ऑफ x का 0 हो गया, राइट। तो 0 आपको x में पुट करना है, ना कि सेकेंड वाले में। इसमें 0 नहीं पुट कर सकते x की जगह, बिकॉज इसके सामने लिमिट 0 लिखा ही नहीं है, जहाँ लिमिट लिखा है वहीं पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो फाइनली f ऑफ 0 का वैल्यू 0 आ गया। तो हम लोग लास्ट में इधर f ऑफ 0 का वैल्यू 0 लिख देंगे, इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो f of 0 का वैल्यू 0 and then we will get the final answer. So here f of 0, f of x equal to x, limit 0 less than x less than pi, and 2 pi minus x, pi less than x less than 2 pi. Now put x equal to 0, then we will get the value of 0. So finally answer is pi square by 8. So hope so कि आपको ये क्वेश्चन कंप्लीटली समझा रहेगा। Any doubt? No, sir. तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट में सॉल्व करके और फिर टाइप 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। Yes.